سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ ٹائیڈل فورس۔ آسمان سے باتیں کرتی یہ لہریں سینکڑوں سال پہلے زمین پر موجود نہ تھیں۔ زمین پر قیمتی مٹی کا وافر ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ جب مجھے یہ علم ہوا، میرے اشتیاق میں مزید اضافہ ہوا کہ شاید کبھی میں جان سکوں کہ آخر ماضی میں زمین کیسی ہوا کرتی تھی۔ ماضی میں ہوئی ایٹمی جنگوں اور ان کی وجہ سے آئے شدید زلزلوں کی وجہ سے ماضی کی بہت کم معلومات آج کے انسانوں کے پاس باقی بچی تھیں۔ ایسی معلومات جن سے یہ جانا جا سکتا کہ زمین پر ماضی میں کس قسم کا ماحول تھا، نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین کی گہرائی میں بنکر سے نکلے لگ بھگ 1 سال گزر چکا تھا۔ ہم سب انسانوں کے اس گروہ سے تھے جو ایٹمی جنگوں سے ہونے والی تباہی سے پہلے اپنے تحفظ کے لیے زمین کی گہرائی میں کئی 100 سال کا اناج لے کر بند ہو گئے تھے۔ ہماری ایک نسل زمین کی گہرائی میں ہی پروان چڑھی تھی اور ہماری نسل کے آباء و اجداد بھی انہی بنکرز میں مرے تھے۔ میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے کچھ عرصہ پہلے اس گہرائی میں موجود بنکر سے نکلنے کا خطرہ مول لیا۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے ہمیں بہت سمجھایا کہ یہاں سے باہر نکلنے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہے، مگر جتنا اناج اب یہاں باقی بچا تھا اس کے بل بوتے پر ہم زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اور ویسے بھی اس سے زیادہ اس پاتال میں رہنا بھی ہر گزرتے دن موت کے انتظار جیسا ہی تھا۔ ہم سب کو یہاں سے باہر نکلنے میں لگ بھگ 2 ماہ کا عرصہ لگا۔ ان بنکر سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہمیں بتایا گیا تھا، وہاں اب سونے اور دوسری دھاتوں کی سخت چٹانیں تھیں جنہیں کاٹ کر نکلنے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا پڑی۔ جو کچھ کتابیں اور معلومات ہمارے پاس تھیں ان میں زمین کے ماضی کے ماحول پر بہت کم لکھا گیا تھا۔ ہم صرف یہ جانتے تھے کہ زمین پر مٹی نامی ذرات موجود تھے اور ان ذرات میں بیج کاشت کرنے سے فصل اگائی جا سکتی تھی۔ بڑے بوڑھوں سے جو عجیب و غریب باتیں سنی تھیں ان کے مطابق زمین پر کبھی دریا اور سمندر سیدھے بھی بہتے تھے اور مٹی اور پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ درخت اور پھل پھول لگتے تھے، مگر ارد گرد دیکھ کر بظاہر ان میں سے کوئی ایک بات بھی سچ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے سامنے زمین پر سب دریا اور سمندر تو تھے، مگر وہ سب آسمان کی طرف بہتے تھے، اور پہاڑ سونے چاندی اور دوسری دھاتوں کے تھے۔ مٹی اور نرم پتھر تو مکمل طور پر ناپید ہو چکے تھے۔ پھل پھول، بوٹے اور درخت نام کی کسی چیز کا کوئی نام و نشان اب تک ہمیں نظر نہ آیا تھا۔ چاند، جس کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ زمین سے دور کبھی آسمان میں چمکتا تھا، وہ زمین کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ ہم بہت عرصے سے سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو کھود کر یہ جاننے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کہ کیا واقعی قیمتی مٹی یا کالے مٹی کے پتھر کا کوئی وجود تھا بھی، یا یہ صرف غلط مفروضوں پر مبنی معلومات ہیں۔ زمین کی سطح شفاف پلیٹینیم اور یورینیم جیسی دھاتوں کی تھی جس پر کسی پھول، بوٹے یا درخت کا اگنا ناممکن تھا۔ مجھے زمین کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ہمیں بچپن میں جس شکل کا پھول ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا وہ سوائے ایک فینٹیسی کے اور کچھ نہیں تھا، اور موجودہ سخت دھاتی زمین پر اس قسم کی چیز کا اگانا محض خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ارد گرد خوراک صرف سمندری حیات تھی اور وہی ہم انسانوں کے کھانے کا واحد ذریعہ بچی تھی، جبکہ زیر زمین ہم پسی ہوئی گندم، چاول اور دوسری اجناس بھی کھا چکے تھے۔ اس کا یقیناً یہی مطلب تھا کہ اس قسم کی اجناس زمین پر کبھی اگائی جاتی رہی تھیں، اور انہی اجناس کے بیج بھی میرے پاس محفوظ تھے، مگر ہزار کوشش کے باوجود تاحال قیمتی مٹی کا ایک ڈھیلا بھی کسی کھدائی سے ہمارے ہاتھ نہ لگا تھا۔ جگہ جگہ ہم سونے، چاندی یا پلیٹینیم جیسی دھاتوں کے پہاڑوں کو کھودتے کہ شاید کہیں سے تھوڑی سی قیمتی مٹی نکل آئے جس میں کسی بیج کو بویا جا سکے، مگر ہر بار ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ زمین پر سونے، چاندی اور دوسری فضول دھاتوں کے خشک و سخت پہاڑ ضرور تھے جن کی چمک سے رات کو بھی اس خطے میں دن کا سما رہتا تھا۔ چاند کے زمین سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے ٹائیڈل فورس جو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کے باعث زمین پر چلتے وقت سمندری یا دریائی پانی کی دیواروں میں سے گزرنا پڑتا تھا جو کبھی کبھار کافی موٹی ہو جاتی تھیں۔ میرے کچھ ساتھیوں نے موجودہ صورتحال دیکھ کر خوف سے زیر زمین سونے کی غاروں میں ہی مستقبل میں رہنے کو ترجیح دینے کی بات کی، کیونکہ جو حالات زمین پر تھے
वो ज़िंदगी के लिए इस तरह साजगार नहीं थे जैसा हमें बताया गया था और जो सोच कर हम बाहर निकले थे। हमें किसी भी हाल में कीमती मिट्टी ढूंढनी थी जिसमें जो बीज हमारे पास बचे थे वो काश्त किए जा सकें। मगर चारों जानिब सोने, चांदी, हीरे और दूसरी धातुओं की सख्त क्रिस्टल चट्टानें, पहाड़ और टीले थे। इन हालात में जल्द अज जल्द इस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके की तरफ रुख करने में ही आफियत थी, मगर पैदल सफ़र करना और वो भी चटियल चमकदार धातों पर और जाबजा आसमान से बातें करते दरियाओं के टुकड़े जिन पर चढ़कर और गुजरकर दूसरी तरफ उतरने में भी काफ़ी वक्त ज़ाय होता था और कोई चारा भी नहीं था। कीमती काश्त के काबिल मिट्टी और कीमती पत्थर ढेलों की तलाश किए बगैर हमारे पास और कोई दूसरी तजवीज़ नहीं थी। हमने सोने के कुछ टुकड़ों को घिसाया और जूतों को स्केटिंग जूते की तर्ज का बनाया जिससे फिसलकर सफ़र की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। पिछले 10 दिन से हम मुसलसल जुनूब से मगरिब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। दरमियान में कई आसमान से बातें करते दरिया आए, ऊपर की जानिब बहते समुंदर पड़े। हम उन सब को सर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। दूर एक मकाम पर हमें हैरत अंगेज तौर पर कुछ दूसरी शक्ल की इमारतें नजर आईं। हमने अपनी रफ्तार को और बढ़ाया। जब करीब पहुंचे तो वहां गैर मुतवक्का तौर पर एक शहर आबाद था जिसके बाहर एक चौकी थी। हम वहां पहुंचे और बताया कि हम जुनूब से सफ़र करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और हमें कीमती काश्त के काबिल मिट्टी की तलाश है। सब ने हमारा इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। शहर अंदर से काफ़ी खूबसूरत था। सब घर सोने, चांदी, हीरे और कुछ छोटे घर प्लैटिनियम के, जो ज़मीन पर ज़्यादा था, बने हुए थे। खाने में समुंदरी हयात ही खाई जा रही थी, वही हमें भी दी गई। शहर के बीच आसमान से बातें करती कई नदियाँ, झीलें और नाले थे जिनमें मछलियाँ और दूसरी हयात ऊपर और नीचे की तरफ तैर रही थी। मछेरे बुलंदी से जाल नीचे की जानिब फेंकते और अपना शिकार पकड़ते थे। हमने शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों को बीजों और एक पुड़िया में रखी कीमती मिट्टी की ज़ियारत करवाई कि इन बीजों के लिए उन्हें इस किस्म की कीमती काश्त के काबिल मिट्टी की तलाश है, जिसे देखकर सब दंग रह गए। कुछ लोगों ने कीमती मिट्टी की खुशबू बारी बारी सूंघी। उन सब में से किसी ने इस किस्म की चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि इस किस्म के ज़र्रे कभी खुदाई में उन्हें यहाँ नज़र आए हैं। मैंने सबको बताया कि मेरे पास ऐसी इत्तलाआत हैं जिनके मुताबिक इस किस्म की कीमती मिट्टी माजी में वाफिर मिक़दार में ज़मीन पर मौजूद थी और इसी मिट्टी में ये बीज बोए जाते थे। वहाँ सब लोग मेरी बात मुंह खोले हैरत से सुन रहे थे। कुछ लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, जैसे मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाकर कुछ लूटने की गरज से यहाँ आया हूँ। मैंने सबको बारावर करवाया कि मैं और मेरे सब साथी उनसे झूठ नहीं बोल रहे और हम यहाँ सबके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए हैं। वहाँ मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन ने मेरी बात का यकीन किया और मेरी और मेरे साथियों की पूरी मदद करने का वादा किया। अगले दिन हम वहाँ मौजूद सोने के पहियों की हद गाड़ियों पर बैठकर अपने अगले मशरिक़ के सफ़र के लिए निकले। हमारे साथ उस शहर के कुछ खुदाई के माहिर लोग भी साथ हो लिए। अगले कुछ रोज़ हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने खुदाई की, बहुत सी कोशिशें की, मगर हमारे हाथ सोने और हीरे जैसी नाकारा धात आती जिसकी हर जगह बहुतात थी, जो हमारे किसी काम ना आ सकती थी। अब तक हमें कहीं भी कीमती मिट्टी का एक भी ज़र्रा दिखाई न दिया था। कुछ दिन के सफ़र के बाद हमें दूर मशरिक़ में एक शहर के आसार दिखाई दिए। हमने अपनी रफ्तार को और तेज़ किया और जल्द ही हम उस शहर की फसील तक पहुंच गए। शहर के अंदर दाखिल होने से पहले चौकी पर हमारी तलाशी ली गई, जहां कीमती मिट्टी की पुड़िया उनके हाथ लगी। उसे देखकर हम सबको फ़ौरन हथकड़ी पहना दी गई। मैंने बहुत शोर किया, ये मेरी मिल्कियत है, चुराई हुई नहीं, मगर हम सबको एक जेल में डाल दिया गया। अगले दिन सिर्फ मुझे निकालकर एक जगह पेश किया गया। वो शख्स शायद उनका सरदार था, जिसने मुझसे ये पूछा कि ये कीमती मुतबर्रिक मिट्टी मुझ तक कैसे पहुंची। मैंने अपना और अपने साथियों का सब माजरा उसको साफ साफ बताया कि हम जुनूब से निकलकर मगरिब से होते हुए यहाँ मशरिक़ पहुँचे हैं और सारा वक्त ये कीमती मिट्टी के ज़र्रे मेरे पास मौजूद थे और ये चोरी के नहीं। उसने मेरी बात गौर से सुनी और मुस्कुरा दिया और मेरी हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। उसने मुझे अपने साथ आने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये शहर कुछ पसमानदा था। ज़्यादातर घर प्लैटिनियम और यूरेनियम के टेढ़े मेढ़े अंदाज के बने थे और लोगों का लिबास भी अजीबो गरीब किस्म का था। वो शख्स मुझे एक जगह लेकर गया जहाँ ऊंची जगह पर एक बड़ा सा सोने का गमला धरा था।
पहली नज़र में मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। गमले के ऊपर कुछ हरे पत्ते भी थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझे छूने के लिए कहा। मैंने झांक के देखा तो गमला कीमती काश्त के काबिल मिट्टी से भरा हुआ था, जिसे बड़ी एहतियात से खास ऊंची जगह पर रखा गया था। शायद वो लोग उसकी इबादत भी करते थे। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ इस इलाके में कीमती मिट्टी के ज़खायर मौजूद हैं। उसने बताया कि उनके इलाके में 2 ऐसे कुएं हैं और एक ऐसी कान है जहाँ से कीमती मिट्टी की बहुत ही कम मिकदार निकाली जाती है, मगर उनके पास खुदाई की ऐसी तकनीक नहीं है जिनको इस्तेमाल करके कीमती मिट्टी ज़्यादा निकाली जा सके। मैंने उसे बताया कि मैं और मेरे साथी इस तकनीक को पूरी तरह समझते हैं। अगर वो हमें इजाज़त दे तो हम कीमती मिट्टी की ज़्यादा मिकदार खुदाई से निकाल सकते हैं। उसने इस शर्त पर इजाज़त दी कि हम निकाली हुई कीमती मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, जिस पर मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बिलाखिर ये तय पाया कि हमें सिर्फ कुल मिट्टी का 10% मुफ्त और बाकी मिकदार कीमत के तौर पर खुराक अदा करने के बाद साथ ले जाने की इजाज़त होगी। इसे मैंने और मेरे बाकी साथियों ने भी मंजूर कर लिया। अगले ही दिन हमने 2 नई कानों और 3 कुओं में खुदाई का काम शुरू किया। 20 दिन बाद हमें कीमती मिट्टी के कुछ नमूने हाथ लगे। हमने खुदाई जारी रखी। कुछ दिन बाद हम एक कान में कीमती मिट्टी के अनमोल खजाने तक पहुंच गए, जो एक अजीम मिट्टी के पहाड़ की सूरत में एक सोने के पहाड़ के अंदर मौजूद था। हम सब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने भारी मकदार में कीमती मिट्टी को बड़े गमलों में महफूज किया। जब अहले इलाका ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मकदार में कीमती मिट्टी देखी तो फरते जज्बात से सबकी पलकें भीग गईं। अहले इलाका कीमती मिट्टी की परस्तिश भी करते थे। सब ने कीमती मिट्टी को छूकर देखा और आंखों को लगाया। आज वहाँ एक मेले का सा समा था। मैंने वहाँ के सरदार से पूछा कि अगर वो इजाज़त दे तो क्या हम इस मिट्टी में वो बीज बो दें जो मैं अपने साथ बरसों से लिए घूम रहा हूँ, और कोई भी मेरी बात पर यकीन न करता था कि इन बीजों से वो अजनास उगाई जा सकती हैं जो माजी में ज़मीन पर उगाई जाती थीं। सरदार ने मुझे इजाज़त दी। मैंने वहाँ मौजूद दरिया के हवा में मुअल्लक़ पानी के बिल्कुल बराबर उस मिट्टी में बीज बो दिए। पानी की मुनासिब ठंडक से 10 दिन में बीज बारावर हो गए और कोंपलें फूट पड़ीं, जो देखते ही देखते कुछ रोज़ में लहलहाती फसल में तब्दील हो गईं। मैं और मेरे साथी हर रोज़ उस फसल की देखभाल करते और इस दौरान कीमती मिट्टी के नए ज़खायर की खोज लगाते। अब तक हम कई मन कीमती मिट्टी निकाल चुके थे और कीमती मिट्टी के वाफिर ज़खायर तक पहुँच चुके थे, जिन्हें अगले कई साल तक निकाला जा सकता था। हमने वहाँ बहुत सी फसलों की काश्त की, जिसे खाकर अहले इलाका हैरान और खुश हुए, और हम सब के लिए ये खुराक बिल्कुल ख्वाब जैसी थी। कीमती मिट्टी के अपने हिस्से के ज़खायर लेकर हमने अहले इलाका से इजाज़त चाही और अपने वतन जुनूब की तरफ ये कहकर लौट गए कि अब हम हर 6 महीने बाद गर्मी के मौसम में खुदाई के लिए आया करेंगे, क्योंकि सर्दी में टाइडल फोर्स की वजह से समुंदर और दरिया की दीवारें सख्त हो जाती थीं, जिनमें से गुजरना और चढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। हमारे पास अजनास और कीमती मिट्टी का वाफिर ज़ख़ीरा था, जो अगली गर्मियों तक के लिए काफ़ी था। रास्ते में हमने मगरिब के बासियों को उनका हिस्सा देकर उतारा और हम खैरियत से वापस जुनूब में अपने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में पहुँच गए।